Now we revise the chapter 15, probability. Answer the following question. What is an experimental or empirical probability? The probability which we find from the taking the experiment. प्रयोग करने से जो एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो आंसर मिलेगा, दिस इज नोन एज द एक्सपेरिमेंटल और द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. हाउ मेनी टाइम्स कार्ल पियर्सन tossed the coin and how many times he obtained the head and find this probability. So Carl Pearson tossing the coin 24,000 times, he obtained the head 12,012. Therefore probability equal to favorable outcome upon total outcome. Favorable outcome 12,012, total outcome 24,000 equal to 0.5005, that is 0.5. What is the probability of getting head or tail by tossing a coin one time? So total 2 outcome by tossing the coin, head and tail. Head equal to H, tail equal to T. For find the P of H, 1 upon 2. P of T 1 upon 2, total outcome of 2, favorable outcome of H equal to 1, favorable outcome of the tail equal to 1, TL equal to 1. How many total outcome by tossing the dice? The total outcome tossing by dice equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. हम डाइस को टॉस करेंगे, 5 से को टॉस करेंगे तो हमको 1 से 6 तक मिलता है. हाउ मेनी टोटल आउटकम बाय टॉसिंग द कॉइन 2 टाइम्स. 1 कॉइन 2 टाइम टॉस कर दो और 2 कॉइन 1 टाइम टॉस कर दो, दोनों सेम कहा जाता है. तो आंसर द टोटल आउटकम बाय टॉसिंग द 2 कॉइन्स आर एच एच, एच टी, टी एच, टी टी. दोनों हेड हो गए, पहला हेड और दूसरा टेल, पहला टेल और दूसरा हेड, दोनों टेल, टोटल आउटकम इक्वल टू 4.
Question number 6. How many total outcome by the tossing the 3 coins? The total outcomes by tossing the 3 coins or 1 time or 1 coin tossing the 3 times are HHH, HST, STH, THH, TTT, TTH, TST, STT. पहले ऊपर लाइन में 4 लिख दिया, फिर तीनों 3 4, पहले 2 तीनों 3 H, पहले 2H बाद में थी, मिडल में T, फर्स्ट T, we place T in place of H, T T T, T T H, H की जगह T, T की जगह H, H की जगह T, टोटल 8 हुआ. How many total outcome by tossing the 2 dice? तो for tossing the 1 dice we obtain the 1 2 3 4 5 6. For tossing the 2 dice 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 6 1 6 2, लास्ट में 6 6, total outcome 36. What is the condition of the probability? The condition of probability is 0 less or equal to P of P less or equal to 1. मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है. 0 से कभी लेस मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नॉट पॉसिबल और मोर देन 1 प्रोबेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल. द प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0, maximum 1 and lies between 0 and 1. Define the probability of event E. So P of E equal to favorable outcome of E upon total outcome. What is the probability of getting the odd number tossing the 1 dice? By tossing the 1 dice, we obtain 1, 2, 3, 4, 5, 6, total outcome 6. In late event E be the getting the odd number. Odd number कौन सा है? तो 1 3 5, A equal to 1 3 5 मतलब 3. Therefore P of A equal to favorable 3, total 6, 3 2 are 0.5. Thank you. Now we start chapter 15. Probability short answer in short. कल मैंने 10 तक किया था. अभी क्वेश्चन नंबर 11. What is the sum of probability of event A and A bar? Means not A. इसका आंसर है P of A plus P of A bar equal to 1. That is P of A plus P of not A equal to 1. This is answer. Question number 12. What is the probability of certain event? The probability of certain event, कोई चौक्कस इवेंट होता ही है, इज 1. का सन रेज इन ईस्ट तो सर्टेन इवेंट है. कोई चौक्कस इवेंट होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इक्वल टू 0. जो पॉसिबल ही नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है. फिर सन रेज इन वेस्ट, सन कभी वेस्ट के अंदर राइज होता नहीं है. सन सेट इन ईस्ट, सन इसके अंदर सेट होता नहीं है. 110 मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 मार्क्स पेपर, ये भी इम्पॉसिबल है. ए मैन हैविंग द 1000 ईयर एज, ये भी इम्पॉसिबल इवेंट है. ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट होता है, इसका वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है. क्वेश्चन नंबर 14. इफ पी ए इक्वल टू 0.35 देन फाइंड पी ऑफ ए. तो हियर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 होता है. देयरफॉर पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस 0.35 इक्वल टू 0.65. तो 1.00
माइनस 0.35, यहाँ 0, 9 एंड 10, 10 माइनस 5 तो 5, 9 माइनस 3 तो 6, तो 0.65। तो आंसर इज P of A bar equal to 0.65. Question number 15. If P of A equal to 1/13, find P of A. So we know that P of A plus P of A bar equal to 1. So P of A equal to 1 minus P of A bar equal to 1 minus 1/3. We are taking the LCM 3 minus 1, so 2/3. Therefore P of A equal to 2/3. So answer is P of A equal to 2/3. Question number 16. What is the probability of getting 26 marks out of 25 marks? 25 मार्क्स का पेपर है और 26 मार्क पॉसिबल नहीं है, तो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। क्यों? कि 25 मार्क के अंदर से 26 मार्क आने का चांसेस होता ही नहीं है इवेंट। देयरफॉर probability equal to 0. What is the probability of sun rise in east? तो मैंने बोला था कि जो सर्टेन इवेंट होता है इनको हम कोई चेंज कर सकते नहीं है, श्योर ही है। तो सन इसके अंदर ही रेज होता है, तो probability equal to 1 because it is certain event। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन सेट इन ईस्ट? इसका आंसर है इम्पॉसिबल इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे तरह मैं 25 क्वेश्चन में पूछूंगा, 25 MCQ के अंदर पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन ए लीप ईयर? तो आंसर दो टाइप केस होते हैं, एक लीप ईयर होता है, दूसरा नॉन लीप ईयर होता है। इन लीप ईयर टोटल 366 डे होते हैं। लीप ईयर के अंदर 366 डे, तो 66 को हम 52 से डिवाइड करेंगे, तो 366 डिवाइड बाय 52, 5 जा 5 2 जा 10, 1, तो 65, सॉरी 1 विज मेक ऑफ 7 डिवाइड बाय 7, मैं मिस्टेक कर दिया। 366 डिवाइड बाय 7, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 1, 6 2 जा 7 2 जा 14, रिमाइंडर 2। इन 1 वीक 1 Sunday, therefore 366 equal to 52 multiply 7 plus 2, तो P of A equal to रिमाइंडर अपॉन 7, रिमाइंडर 2 है, तो 2 अपॉन 7, दिस इज आंसर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन नॉन लीप ईयर? आंसर इन नॉन लीप ईयर ईयर 365 डेज होते हैं। तो
तो 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 365 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 52, तो 364 हुआ प्लस रिमाइंडर 1, तो P ऑफ E इक्वल टू रिमाइंडर अपॉन 1, रिमाइंडर 1 है अपॉन 7, तो 1/7, दिस इज आंसर. What is the probability of 5 Monday in February 2020? Answer: in February 2020 means leap year. तो लीप ईयर किसको बोलते हैं कि जो साल के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं लीप ईयर. हम 20 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो लीप ईयर बन गया. तो लीप ईयर के अंदर फरवरी के अंदर टोटल 29 डे होते हैं. तो 29 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 4 28 प्लस रिमाइंडर 1, तो P ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू रिमाइंडर अपॉन 7, तो 1/7 आंसर. तो आंसर इज 1/7. Now question 22. What is the probability of 5 Monday in February 2021? So 2021 is non-leap year. लीप ईयर नहीं है तो टोटल डेज 365 होते हैं. 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 52, तो 364 हुआ प्लस 1 हुआ, तो P ऑफ कोई भी इवेंट M ले लो इक्वल टू रिमाइंडर 1 है अपॉन 7, ऑलवेज लीप ईयर. तो 4 से डिवाइड होते हैं वो लीप ईयर है. नॉन लीप ईयर 4 से डिवाइड होता है नहीं है और नॉन लीप ईयर है. लीप ईयर के अंदर टोटल डे 366 होते हैं. फरवरी के अंदर 29 डे होते हैं. नॉन लीप ईयर के अंदर टोटल डे 365 होते हैं. नॉन लीप ईयर के अंदर फरवरी के अंदर 28 डे होते हैं. So what is the probability of getting the 2 friends? What is the probability of 2 friends, Harshal and her, have the same days in 2021? So answer. So 2021 is non-leap years. दोनों का सेम बर्थडे है तो इवेंट बोथ है और सेम बर्थडे. एक ही डे फिक्स है तो टोटल नॉन लीप ईयर है. इसके अंदर 365 डे होते हैं तो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू सेम डे 1 डे हुआ और टोटल डे 365. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फ्रेंड हर्षल एंड हर्ष हैव नो सेम डे इन 2021? तो इसका आंसर है इन 2021 टोटल डे 365 होते हैं. सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी P ऑफ ए है तो P ऑफ ए बार मीन्स P ऑफ नॉट सेम बर्थडे इक्वल टू 1 - P ऑफ ए
हमने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर पी ऑफ ए फाइंड कर दिया, तो 1 - 1 अपॉन 365, एलसीएम 365, 365 - 1 तो 364 अपॉन 365, बोथ हैव नो सेम बर्थडे, सेम बर्थडे नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इक्वल टू 364 अपॉन 365. What is the probability of getting 0 marks in 25 marks पेपर? इसका आंसर है इन 25 मार्क्स पेपर, 25 मार्क के पेपर के अंदर कोई 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और 25 में से 25 भी आ सकते हैं, तो टोटल आउटकम मिले 26. तो टोटल आउटकम इक्वल टू 26. टोटल 26 इवेंट हुए. कैसे हुए हैं? तो 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 25 भी 25 पॉसिबल है, तो 0 के साथ 26 डे हुआ. ऑब्टेन द 0 मार्क्स. इवेंट ए ऑब्टेन 0 मार्क्स. तो पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 0 ओनली 1 ही था, तो इवेंट ए के अंदर ओनली 0 मतलब 1 ही था, तो 1 अपॉन 26 आंसर. क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 25 मार्क्स इन 25 मार्क्स पेपर? इसका आंसर इन 25 मार्क्स पेपर टोटल आउटकम 0 भी आ सकता है, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी मार्क्स आ सकता है, 24 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है. टोटल आउटकम है 26. इवेंट भी या कोई भी ले सकते हो. इवेंट भी गेटिंग 25 मार्क्स, 25 ये ओनली एक ही है, तो पी ऑफ बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम तो 1 है अपन टोटल आउटकम 26 है. थैंक यू. Now we start the MCQ of chapter 15, probability. Question number 1, P of A plus P of A bar equal to dash. P of E पूछा है, P of E plus P of E bar equal to dash. तो sum of two probability event कितना होता है? 1 होता है. Therefore P of A plus P of A bar equal to 1. So answer D है, 1 answer. If a 1 card is drawn from well supplied deck of 52 card, probability of selecting the red color king. तो टोटल कार्ड कितने होते हैं? इसका आंसर टोटल कार्ड, ताश के टोटल कार्ड्स 52 होते हैं. टोटल किंग 4 होते हैं, बट रेड कलर किंग 2 ही होते हैं. एक होता है डायमंड का होता है किंग, एंड दूसरा होता है हार्ट का किंग होता है. 2 ही रेड कलर वाले किंग होते हैं. तो इवेंट ए पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 2 है, टोटल आउटकम 52 है, 2 1 जा 26, तो 1 अपॉन 26. तो आंसर इज बी इक्वल टू 1 अपॉन 26. दिस इज आंसर. ए डाई थ्रोन वंस, ए डाइस हम थ्रोन करेंगे
तो 1 टाइम टॉस करेंगे हम तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 आउटकम है। गेटिंग द प्राइम नंबर, तो इवेंट ए विच है प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 6 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं कि जो नंबर को 1 एंड इट सेल्फ 2 से डिवाइड होते हैं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। तो पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल आउटकम 6 है, तो 1/2, तो आंसर इज बी। बी इज आंसर 1/2। क्वेश्चन नंबर 4, ए डाइस इज थ्रोन, डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉलेस्ट इवन एंड प्राइम नंबर। इवन नंबर भी होना चाहिए एंड प्राइम नंबर होना चाहिए, तो इसका आंसर टॉसिंग dice 1, we get 1, 2, 3, 4, 5 and 6, टोटल आउटकम 6 मिलेंगे। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो भी 2 है, तो इवेंट ए इक्वल टू स्मॉलेस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम, ओनली 2 ही है, तो एक इवेंट हुआ, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 1/6 आंसर। तो 1/6 कौन सा है, तो आंसर इज बी। ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम मीन्स इक्वल नंबर, तो बाय टॉसिंग, इसका आंसर बाय टॉसिंग 2 डाइस वन और 1 डाइस टॉस 2 टाइम, तो टोटल आउटकम होता है 36। कौन कौन से 36 होते हैं, तो 1, 1, 1, 2, 1, 6, 2, 1, 2, 2 अप टू 2, 6, लास्ट में होता है 6, 1, 6, 2, 6, 6, टोटल 36 होते हैं। लिखा है सेम नंबर ऑफ मीन्स बोथ आर सेम नंबर, तो सेम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो इवेंट ए सेम नंबर, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, टोटल 6 हुआ, तो पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम है 6/36 इक्वल टू 1/6, तो आंसर इज ए। we get what is the probability of getting at least 2 head by tossing the 2 coin, इसका आंसर टोटल आउटकम by tossing 2 coins once, तो एच एच होते हैं, एच टी, टी एच, टी टी, कम से कम 2 हेड,
2 head or more than 2 head, at least 2 head, 2 head कम से कम 2 हेड होना चाहिए, और मोर देन 2 हेड कम से कम ओनली 1 ही है, तो एटलीस्ट 2 हेड, ओनली 1 ही आइटम है, मीन्स एच वाला 1 है, therefore P of A equal to 1/4, बट एट मोस्ट लिखा है, मैक्सिमम 2, तो सब आ जाएंगे।